Dhurandhar I watched and हाँ. I am obsessed with it. Like, I'm a very big Ranveer Singh fan. Like, I love him so much. So that I really enjoyed watching. I think Dhurandhar only because it just came out and it also needed a young girl who opposite Ranveer, you know, and someone who's from Pakistan and. Yeah, I think I would fit very well. So for like part 3 or something, I'm ready. They can call me. I'm a green flag girl. What do I say? वही सामने आ रहा है. ये मैंने क्या कर लिया, you know? And my mom always told me, she's like, you know, it is tough. It may look all nice and fun and glamorous on the outside. But when I was I think 2021 जब काम नहीं मिल रहा था, वो beginners luck जो ads मिलते थे वो रुक गए. Hi, this is Jay and you're watching me on Galata India. Today I'm in conversation with someone who is very talented, very gorgeous, presenting Aisha Ahmed. Hi Aisha, how are you? Thank you so much for like being so nice. No, I have to be nice. ना आप इतने अच्छे हो, You इतने had सुंदर दिख रहे हो. to. You had to be nice. नहीं, joking. But how has been things going on? How have you been these days? I'm very happy actually. जो काफी मुश्किल होता है I think living in Bombay and just being stuck in the day-to-day rut. I think I'm very happy. Yeah, yeah. You know, start से देखूं और अब single पापा तक, ठीक है? I really want to ask, what has been your turning point in your life? Turning point तो I think मैं भी अभी तक wait कर रही हूँ. But I think starting point था doing digital videos, doing a YouTube show. जो उस टाइम लग रहा था कि यार ये तो टाइम पास है, अभी हम काम नहीं है तो जाके कुछ कर लेते हैं, मजा आएगा, एक्टिंग करते हैं. सब सेम एज के लोग थे, काफी रिलेटेबल स्क्रिप्ट्स थी, तो जाते थे, शूट करते थे, मजा आता था. Didn't know that it would give such a big push in the career. Even now मैं लोगों से मिलती हूँ, even though single papa is there are a lot of music videos, but फिर भी मुझे निखती बुलाते हैं. That's my character from adulting. Yes, adulting, yes. So I think that definitely was a very big push and the starting point, so to say, for my career. But to be honest, I feel adulting और ये माइनस को अगर देखा जाए तो I feel ये दोनों ना काफी younger audience के साथ ना relate कर रहा है. और इसलिए younger audience के बीच ना you are very, you know, very famous. Everyone knows that. I'm very happy about it. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. There's so many like young girls who always come up to me and they're like, we watched you since we were in school, and I'm like, that's nice. I really like that. Yeah. But when it comes to project, I think आप directly कोई conscious decision होता है कि ऐसा ही project करना है, so that I get roles according to it, या फिर same type का roles you don't choose. ऐसा honestly है नहीं. And if I have to really open my heart out and tell you, I think जो इस industry में बाकी actors हैं वो भी यही कहेंगे कि काफी टाइम तक वो डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास नहीं होती है. मतलब जो रोल्स आ रहे हैं जिसमें आप सिलेक्ट हो रहे हो, आपको वही करना है. ऑफ कोर्स ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव मे बी नॉट कनेक्टेड विद, व्हिच आई हैव सेड नो टू. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई फेल्ट लाइक ये तो करना ही करना है, दे डोंट वर्क आउट. बट लाइक यू सेड कि ज्यादातर जो मेरा काम रहा है उससे बहुत यंगर ऑडियंस रिलेट कर पाई है, एंड दे आर द वंस हु आर एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया, तो उससे वो पुश बहुत ज्यादा मिला है. जब सिंगल पापा रिलीज हुआ, आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पीली सरप्राइज्ड कि older generation is who's enjoying the show. मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो है उन्होंने बिंज वॉच कर लिया है, उन्हें बहुत अच्छा लगा है शो, उन्होंने कहा एक्चुअली मजा आया. सो आई लाइक दैट वो थोड़ा शिफ्ट ऑडियंस में हुआ है. दैट पर्सपेक्टिव शिफ्ट हैज हैपेंड आई थिंक. और आपके कैरेक्टर को यू नो ग्रीन फ्लैग भी डिस्क्राइब किया जा रहा है ना. I'm a green flag girl. What do I say? वही सामने आ रहा है. But when it comes to green flag, जब लोग ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, how does that feel? क्योंकि आजकल ग्रीन फ्लैग होना भी बहुत नसीब की बात है. I don't think मैं लाइफ में भी हूँ. मेरे फ्रेंड्स मुझे ऐसे देख कर कह रहे हैं तुम ग्रीन फ्लैग, बट I mean obviously as a joke, but it's sweet, you know. And also जब हम लोग शो भी शूट कर रहे थे, जब मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी थी, मैंने अपने सीन्स पढ़े थे, it felt very nice, you know, reading those scenes, looking at this girl, this character, और बहुत simply she puts her, you know, thoughts out there. उसे ड्रामा नहीं पसंद, उसे complicated चीजें नहीं पसंद, so actually वो कैरेक्टर प्ले करने में जो ईज से वो आया, that was really nice. So to be a green flag I think is nice. To be easy, to be very well assured कि सब ठीक है, you know, and मैं किसी को tough time नहीं दूंगी just to get my importance felt. So it's nice. True. But how was the shooting this
होल कास्ट, एक कितनी अच्छी कास्ट है जो Yeah. फन कर रही Yeah. है पूरे Yeah. शूट में, पूरे फन एंजॉय मस्ती के साथ ये पूरा का पूरा शूट हुआ है। पूरा शूट एक्चुअली इतने स्मूथली, मतलब टच, अब तो क्या टचवुड, अब तो हो गया, सो गया। आई एम रियली हैप्पी, आई कैन से इट एंड आई एम नॉट जिंक्सिंग इट। इतनी इजीली हुआ, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि शशांक खेतान, who's the Yes, creator of the yes. show, Ishita, Neeraj, Hitesh, were the other directors, Ishita who's written it, वो लोग इतने easy थे ना, मतलब the way they led the entire cast, and also जो कास्ट है सब इतने फन में थे। मैं बहुत नर्वस थी फर्स्ट डे भी, जब मैं गई तो मैंने शशांक को देखा, कुणाल को देखा, एंड माय हार्ट वाज बीटिंग सो लाउडली, और मैंने जाते ही बोल दिया ऐसा, गाइस आई एम रियली नर्वस, अब मैंने बोल दिया तो अब ये ठीक होगा। एंड देन शशांक केम एंड गिव मी अ हग, एंड कुणाल वाज आल्सो सो रिलैक्स्ड, यू नो, कोई ऐसी हायरार्की नहीं थी सेट पे, ये नहीं था कि ये सीनियर एक्टर्स है या ये एक्सपीरियंस एक्टर है या ये फेमस एक्टर्स है, सब आराम से एक दूसरे के साथ सीन्स कर रहे थे। यू वुड सिट एंड वर्क ऑन दो सीन्स, ऐसा नहीं हो रहा था कि अच्छा जब मेरा सीन हो गया अब मैं जा रहा हूँ, यू नो, अब मैं क्यों नहीं दूंगा। वी स्टेड देयर फॉर एवरीबडी, एंड फिर हमारा एक आउटडोर स्केड हुआ था रणथंभौर में, विच वी वर लिविंग टुगेदर, वी वर ईटिंग ऑल मील्स टुगेदर, एंड आई थिंक a lot of credit of that has to go to the makers, the team leaders, so to say, you know, your producers, your directors, they made sure कि पूरा cast साथ में रहे. And I think Shashank also really likes having fun, which I realized, you know, उन्हें अच्छा लगता है कि सब बैठ के chill करे, बात करे, बहुत creative discussions काफी हो रहे थे। और जो 7 दिन थे, I got to also talk a lot to the other directors, Hitesh and Neeraj. उनसे समझने का बहुत मौका मिला कि, you know, where they're coming from, what their experience in life has been, why they want to create this show. So it was, मैं तो बात करती रह सकती हूँ इसके बारे में काफी लंबा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मजा आया, and I can't wait to be back on the same set if there is season 2. Of course, I think it is. कुणाल ने कुछ तो हिंट दिया है कि दिया है क्या? So it's on Kunal, it's not on me, it's on Kunal then. But really want to ask, वो क्या एक टाइम था या वो कब था वो मौका जब you thought कि नहीं मुझे एक्टिंग ही करनी है? What influenced you? Because of your mother? I don't know. I think growing up मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे बड़े होके ये करना है या वो करना है. I feel like till last year, from the time I started working, सब चीजें फ्लो ही होती गई हैं. जो भी आया I did it. जो भी किसी ने कहा ये कर लो तो मैंने कर लिया. I was actually a very, मेरी मॉम के हिसाब से I was a reserved kid, but मैं actually बहुत नॉटी थी. बट आप अपने पेरेंट्स के सामने हमेशा थोड़ा you know well behaved और वैसे रहते हो, तो उन्हें लगा कि एक्टिंग वर्कशॉप में इनरोल कर देते हैं समर हॉलीडेज में, ताकि शी विल ओपन अप एंड यू नो थोड़ा और बॉम्बे में लोगों, बिकॉज आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल, तो बॉम्बे में लोगों से मिलेगी और यू नो शी बी एबल टू टॉक टू पीपल एंड ऑल ऑफ दैट. नादिरा बब्बर जो है उनकी एक्टिंग वर्कशॉप थी 1 महीने की, और वहाँ पे जाके जब मैंने देखा यहाँ पे तो इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, मतलब एज वाइज यू नो दे वर ऑल, एंड आई वाज द यंगेस्ट, और सब मेरे सीन्स देख रहे हैं, सब मुझे यू नो पुश कर रहे हैं टू डू बेटर. I think that was the time I realized, okay, this is what I want to do. फिर slowly I started early, like at 16, 17. फिर when I was I think around 20, I realized, oh shit, ये तो बहुत difficult है. ये मैंने क्या कर लिया, you know? And my mom always told me, she's like, you know, it is tough. It may look all nice and fun and glamorous on the outside. But when I was I think 21 जब काम नहीं मिल रहा था, वो beginner's luck जो ads मिलते थे वो रुक गए. I thought नहीं ये नहीं करना चाहिए था, but then I had no other choice. I had dropped out of college and I had gotten so much into it. जैसे अब करना तो यही करना है, अब वो होगा नहीं होगा जैसा भी होगा. And obviously over the years there's been a lot of learning. जो आपका idea है, not just your craft but you know how you approach your work. इंडस्ट्री के बारे में आपके क्या व्यूज है, आपको क्या लगता है, एंड देन इवेंचुअली आई थिंक एट सम पॉइंट आई केम इनटू माय ओन. आई रिलैक्स्ड, आई आल्सो रियलाइज कि मेरे क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, व्हाट इज इट दैट एज अ पर्सन आई एम लैकिंग, एज एन एक्टर आई एम लैकिंग. सो आई थिंक वो वर्क तो चलता ही रहता है, बट आई थिंक दिस यही है जो है अब तो. बट यू वर वेरी जीनियस काइंड ऑफ स्टूडेंट और समवन वेरी गुड एट स्टडीज? नो, आई वाज रियली बैड. मतलब मैं आई थिंक आई वुड लाइक टू से I don't know if it's luck या क्या था, मैं पढ़ती नहीं थी. मेरे प्रीलिम्स और हाफ ईयरली में भी मतलब 45% 50% आए थे, बट बोर्ड्स में मैंने डिसाइड किया था कि आई वांट 80%. अगर 80% से कम आया तो फिर क्या ही फायदा है इसका. सो
एक दिन पहले मैं पढ़ लेती थी जो याद, लकीली मेरा फोकस अच्छा था, अगर मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, एंड आई थिंक दैट समवेयर हेल्प्स मी लर्निंग लाइंस आल्सो, तो मुझे आ जाती है जल्दी से लाइनें, मैं व्हाटएवर आई वुड फोकस लर्न एंड आई गॉट 80%, सो आई वाज वेरी हैप्पी. सो जीनियस एंड ऑल आई डोंट नो, बट जितना जरूरी होता था उतना मैं कर लेती थी, लाइक आई नेवर फेल्ड. सो जैसे मैं रट्टू तोता थी, ठीक है, मैं रट लेती थी काफी. वो मुझसे कभी नहीं होता था, मैं रट के गाती थी, मेरे को लॉजिक जहाँ आता था ना, आई वाज लाइक डैम नो, आई डोंट वांट टू. मुझसे रट्टा ही नहीं जाता था. जैसे अभी भी मैं लाइनें रट नहीं सकती, मुझे आई नीड टू मेक सेंस आउट ऑफ इट कि अच्छा ये क्यों बोला जा रहा है, अच्छा ये अगर मैं ऐसे बोल दूंगी. सो या आई वाज नॉट दैट, बट आई एम क्वाइट जेलस. मुझे अभी भी कभी कभी लगता है कि रट के चली जाओ, बट नहीं हो पाता. But what has been your non-negotiables when it comes to choosing the script, और ऐसा काम करना है, ऐसा काम नहीं करना है, कुछ something like that? That's actually very interesting. मैंने ऐसा कभी thought नहीं दिया है, but if you actually ask my manager, she'll say कि नहीं, she is very sure of some things that I want to do, I don't want to do. मुझे कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करनी for the show of it, for the मतलब एक इमेज के लिए नहीं करनी. मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट है जो अच्छा है, आई वुड लव टू डू इट, वो छोटा हो बड़ा हो. आई डोंट वांट टू डू द प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज के इसमें सो एंड सो पीपल हैं तो इसका रीच बहुत अच्छा होगा, इसमें सो एंड सो लोग हैं तो तुम्हारी इमेज ऐसी बन जाएगी. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो फर्स्ट चीज नहीं है जिसको मैं देखती हूँ. लाइक यू नो, आई एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक आई रियली वांट टू प्रूव माई सेल्फ कि आई कैन एक्ट. So you know, जो भी parts होंगे, it doesn't have to be the biggest, it doesn't have to be a headliner, but I just want to act, you know. तो अभी मेरे वो जबरदस्ती कुछ नहीं करना मुझे. That's the I think non-negotiable. That's it. जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा कि सोशल मीडिया ने काफी पुश दिया है कहीं ना कहीं यंगर ऑडियंस For के sure, बीच. yeah. Do you think social media is very much important these days, where you have to be active, where you have to post everything, what you do, what you don't do in your life? You know, इसके भी ना, it's a sword with like वो क्या कहते हैं, two edges in that sense. When I became really popular on social media, तो मेरे जो बाकी एक्टर्स फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं ऑडिशन देती थी, या फ्रेंड्स भी नहीं जो जानने वाले थे, वो मुझे कहते थे यार अब तो कास्टिंग जो है ना, सिर्फ जिनके पास फॉलोअर्स होते हैं उन्हीं को रोल्स मिल रहे हैं, हम तो एक्टर्स हैं, हम तो इन्फ्लुएंसर नहीं है, हमें तो बस एक्टिंग करनी है, बट ये सारे शोज में सिर्फ पॉपुलर लोगों को मिल रहा है. और मैं वहाँ पे थी, आई वाज लाइक बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू नो. ऐसा नहीं है कि मेरे पास लाइनें लगी हुई हैं एंड आई हैव सो मेनी स्क्रिप्ट्स टू रीड. So I would disagree with the fact that you if you have the numbers, you will land a role. But having a social media presence is very important. Because अगर आप देखोगे आजकल, अगर हमें एक ब्रांड से कपड़े भी लेने होते हैं ना, तो हम पहली चीजें करते हैं, जो इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि इनका क्या फोटोज है, कपड़े कैसे लगते हैं. रीच की भी बात नहीं है. आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग हैविंग अ प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया. आई नो कि अगर हम एक है मेकअप आर्टिस्ट को भी बुक कर रहे हैं तो हम उनके सोशल मीडिया पहले खोल के देखेंगे. कहीं से केक ऑर्डर करना है तो भी सोशल मीडिया पहले देखेंगे, अच्छा इनके क्या क्या केक्स है और कैसे दिखते हैं, यू नो. सो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड प्रेजेंस. आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, क्योंकि वो प्रिविलेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं है कि यू कैन वॉक इन टू एनी ऑफिस एंड टॉक टू द प्रोड्यूसर और टॉक टू द डायरेक्टर. सो हाउ यू वांट टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू अ डायरेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ रोल्स यू वांट टू डू, व्हाट डू यू एस्पायर टू डू, it's really a very big plus that we have, which is social media. तो आप अपने आप को वैसे प्रेजेंट कर सकते हो. So yeah. So true. But any of your project जो आपने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मुझे रेलेवेंट रहना है, मुझे काम करना है, या फिर समथिंग लाइक दैट कि आई रियली वांट टू बी नोन, लोग मुझे भूले ना, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेवेंस, समथिंग लाइक दैट? नहीं, ये थॉट ऑब्वियसली हमेशा रहता है और बहुत बार क्रॉस करता है, बट आई डोंट थिंक मेरे लिए काम ही नहीं करता वो वैसे. मतलब अगर मैं सोच लूंगी ना ये नहीं ये मुझे पॉपुलैरिटी के लिए ही करना है, वो मेरे लिए वर्कआउट ही नहीं होगा. आई हैव रियलाइज्ड. सो नहीं, ऐसा तो थॉट नहीं रहा. आई हैव बीन वेरी लकी that the makers I worked with are very, very good. And I hope it continues like that. There's something also that is happening next year, which is very exciting. But I obviously can't talk about it because I haven't signed anything yet. But I've been very lucky with the kind of people I get to work with. So I would like it to continue that way. ना रिसेंटली ना मैंने कई एक्टर्स से बात की, कई लोगों का ये कहना है कि व्हेन यू गिव मतलब जनरली एक्टर्स ना ऑडिशन देना पसंद नहीं करते जब एक टाइप का वो मूवीज कर लेते हैं या फिर सीरीज में काम कर लेते हैं. डू यू थिंक दिस वे कि ऑडिशन इज अ गुड वे और नॉट? ऑडिशन इज द ओनली वे, एटलीस्ट फॉर मी. आई हैव लर्न दैट. अगर मैं अभी आपको अपना फोन खोल के दिखाऊंगी द नंबर ऑफ ऑडिशंस दैट आई हैव डन, इट्स
it's quite crazy, but I wish I knew any other way कि जो कि ऑडिशन नहीं करना है और आप फोन उठा के कह सकते हो मुझे कास्ट कर लो, या आप जाके किसी के ऑफिस में मिल सकते हो कहते हो मुझे कास्ट कर लो. आई डोंट थिंक इट वर्क्स ओनली लाइक दैट. ऑफ कोर्स अब रणवीर सिंह और रणवीर कपूर को ऑडिशन नहीं करवाओगे बिकॉज दे आर स्टार्स यू नो, बट आई थिंक ऑडिशन तो देना ही पड़ता है. मतलब इफ आई फिगर अ डिफरेंट वे आउट, आप लोगों को पता है तो मुझे बता दो. बट इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं विच आर नॉट वेरी क्लोज टू योर पर्सनैलिटी, सो इट ऑल्सो गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि आई किल्ड इट यू नो. या जो भी आपको अनश्योरिटी होती है ऑडिशन के टाइम पे, आप फिर इट एज एन एक्टर इट गेट्स यू वेरी लाइक एटलीस्ट मी आई गेट वेरी क्यूरियस कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, चलो लेट्स डू इट. एंड लकीली आई हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जब भी घर से ऑडिशन भेजना होता है तो वी ऑल सिट अच्छा ये सीन ऐसे कर सकते हैं, अच्छा नहीं ये सीन, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है सबके उनके पर्सपेक्टिव सुनना कि अरे ये तो मेरे ध्यान में आया ही नहीं. सो आई एक्चुअली एंजॉय द प्रोसेस अ लॉट. या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात करिए आपने, do you have some common groups in this industry or someone from out of the industry? No, all my very close friends are from the industry. हमने साथ में कभी काम नहीं किया है. We just happened to become friends. और हम सब मतलब अब तो 10-12 साल हो गए तब से फ्रेंड्स हैं, एंड वी सॉर्ट ऑफ ग्रोन अप विद ईच अदर इन दैट सेंस. बट या आई हैव सराउंडेड माई सेल्फ प्रीटी मच विद इंडस्ट्री पीपल ओनली, एंड विच आई थिंक आई लाइक इट. मुझे तो अच्छा ही लगता है कि यू नो वी आर ऑल इन द सेम प्लेस, वी डिस्कस सिमिलर थिंग्स. सब काफी लाइक दे ऑल वेरी इंटरेस्टिंग पीपल. सो ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ इंडस्ट्री की बातें करते हैं, बट इट्स अ गुड बंच ऑफ पीपल. आई लव माय फ्रेंड्स. आई या वो शाम में चाय पीने चले वाला फ्रेंडशिप है. या रियली शूट अच्छा गया चलो फ्रेंड्स से मिलते हैं, शूट बुरा गया चलो फ्रेंड्स से मिलते हैं, काम मिल रहा है अरे फ्रेंड्स से मिलते हैं, काम नहीं मिल रहा है चलो किसी को काम नहीं मिल रहा है साथ में बैठते हैं. सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल. दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप आई फील, राइट? बट कुछ रिसेंट फिल्म्स देख रही हैं आपने? कुछ क्या देख रही हैं आजकल? क्या बिंज वॉच कर रही? सिंगल पापा के अलावा? सिंगल पापा तो या सभी बिंज वॉच कर रहे हैं, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट. लास्ट टाइम आई वाज वाचिंग एंड इट्स फन. इट्स फन. पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बट आई एम वाचिंग बिंज. बट इट्स इजी, इट्स नाइस, इट्स आई थिंक जिस चीज के लिए जैसे मेरे फ्रेंड की मॉम ने कहा था कि ये सही है, ये ऐसी चीज ना बहुत टाइम से नहीं आई है और कितना अच्छा लगा. फन है, enjoy, मतलब मजा आ रहा देख के मुझे तो to be honest. I think Dhurandhar I watched and I am obsessed with it. एक तो I'm a very big Ranveer Singh fan. Like I love him so much. So that I really enjoyed watching. फिर एक show है Mr. Mercedes. You watched it? No, I haven't watched. I've heard a lot about it. It's very good. अभी मैं I think 6th episode पे हूँ. That's a very very interesting show. ये दो है and I've been reading a lot. मैं पहले कभी पढ़ती नहीं थी और इस साल मैंने पढ़ना शुरू किया तो I've been reading a lot of thriller books. तो उसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है. So now I don't even feel like switching the TV on, you know, because phone पे इतना screen हो जाता है. So I really enjoy reading right now. That's good. One director you really want to collab with? One director. There's so many. There's so many that I want to work with. But if I have to really pick one, then it has to be, I think, Zoya Akhtar. I really would love to work with her. Yeah. कोई उनकी favorite film है I think आपकी? Yeah, I think all her films are, and also I really want to work with Aryan Khan. I think उनका जो show अभी आया है, and it's created that buzz and it's so fresh and so young. So I think working with him will be very interesting. True. कोई ऐसा एक फिल्म जिसमें आप चाहती थी कि आप होते बट आप नहीं है उसमें? वैसे तो बहुत सारी चीजें, you know, आप जब भी देख रहे हो as an actor you're like I wish ये मैं होती, मैं ये कितना अच्छा कर लेती, but film only. I think Dhurandhar only because it just came out and it also needed a young girl who opposite Ranveer, you know, and someone who's from Pakistan and yeah, I think I would fit very well. So for like part 3 or something, I'm ready. They can call me. I'll take a rickshaw right now and like rush. Aditya, please listen to this. Yes, please. But thank you. But before going, I want to really ask you, कहाँ हम देखेंगे अब आपको? Upcoming times से where you gonna see? See, one thing that I don't stop doing is my music videos. मुझे बहुत मजा आता है music videos करने में and they're the most special to me. So एक T-series के साथ मैंने music video किया है which should be out in January. Wow. और 2 और projects हैं which I'm gonna shoot next year, but you'll see me very soon. I'm so happy to say this. I've always waited for it, but yeah, next year is gonna be very exciting. So I'm looking forward to it. But how was it 2025 because it's coming to an end? It was very good. Yeah? It was, I think, बहुत सारे personal level पे learnings हुई हैं. The way I approach my work has changed a lot and I'm more at peace with the way I see things now. Single Papa happened.
I'm very happy. It's been a very, very good year. Yeah. I wish you good luck only. you. You know, you're doing great. Thank you. And I wish Thank you have your only success in this year and coming Thank year every you. year. Thank you. Thank Thank you you so so much for It's so talking sweet. to Thank me. you. Thank Yes. you. Thank you. Thank you.